Good morning students, again you are welcome in MK classes. Yesterday I told you about 3D view of national income. By considering on that fact, we will able to understand that domestic income has triple identity. In that class, I was told you about the value of final goods and services. The value addition of final goods and services is equal to income generated in the domestic country, the domestic economy, and equal to the total expenditure by the consumers in the domestic economy. So what we write here, domestic income equals to, domestic income has triple identity. First one is value addition of final goods and services. Final goods and services. Domestic income is also equal to generated income या income generated आप लिख सकते हैं. Income generated and domestic income is also equal to the aggregate expenditure on purchase of final goods and services. Final goods and services. Student, this is macroeconomics. Okay, if you get the data of total value addition of final goods and services in our domestic economy, the value of this is always equal to domestic income of the economy. Suppose that if you take the sum of income generated in the domestic economy, it will be always equal to domestic income. Suppose you only take the expenditure by the household government, okay, on purchase of final goods and services. Final goods and services. तो जो इसकी भी वैल्यू जो आएगी वो डोमेस्टिक इनकम का इक्वल होगा. It means that domestic income is identical to value addition of final goods and services, income generated in the domestic economy, and expenditure on purchase of final goods and services. By having these three facts, there are three methods of calculating national income. जैसे अगर आप इसके मदद से वैल्यू एडिशन की मदद से आप अगर नेशनल इनकम कैलकुलेट करते हैं तो उस मेथड को हम लोग प्रोडक्ट मेथड बोलते हैं. देयर आर थ्री मेथड ऑफ कैलकुलेटिंग दिस नेशनल इनकम. फॉर कैलकुलेटिंग नेशनल इनकम, फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू कैलकुलेट डोमेस्टिक इनकम, देन NFIA will be added in domestic income to get national income. So student, national income निकालने के लिए तीन मेथड होते हैं. तो जैसे कि अगर आप वैल्यू एडिशन मेथड को लेंगे तो पहला मेथड का नाम है बेटा प्रोडक्ट मेथड, प्रोडक्ट और वैल्यू एडेड मेथड. प्रोडक्ट और वैल्यू एडेड मेथड. This is the first one. This is the first method of calculating national income with the help of value addition. Second method is income method. Income method of calculating national income. And third one is expenditure method. Expenditure method. Students, जो भी क्वेश्चन सीबीएसई के द्वारा सीबीएसई बोर्ड एग्जाम में आता है उसमें सबसे ज्यादा जो है एक्सपेंडिचर मेथड और इनकम मेथड के जरिए नेशनल इनकम निकालने के लिए आता है. बच्चों ये तीनों में से कोई भी मेथड अप्लाई करेंगे क्वेश्चन में तो आंसर बिल्कुल सेम आएगा नेशनल इनकम का. ठीक है, तो आज मैं आपके सामने सबसे पहला जो मेथड है प्रोडक्ट मेथड और वैल्यू एडेड मेथड, इसको मैं बताने वाला हूं कैसे वैल्यू एडिशन को कैलकुलेट किया जाता है. ठीक है,
जैसे बच्चों कल के क्लास में एक बच्ची ने हमसे पूछा कि सर वैल्यू एडिशन ऑफ गुड्स, वैल्यू एडिशन और जो है वो वैल्यू ऑफ आउटपुट, वैल्यू एडिशन और वैल्यू ऑफ आउटपुट क्या ये दोनों सेम है? ज़्यादातर बच्चों के सवाल में, बच्चों के मन में ये सवाल रहता है कि सर वैल्यू एडिशन और वैल्यू ऑफ आउटपुट दोनों में क्या डिफरेंसेस हैं? कुछ लोगों को लगता है कि दोनों सेम है, तो उसको मैं थोड़ा सा मैं डिस्क्राइब करना चाहूंगा। बच्चों वैल्यू एडिशन का मतलब होता है वैल्यू एडिशन का मतलब क्या होता है? वैल्यू ऑफ आउटपुट या आप यहां पर लिखेंगे मार्केट वैल्यू ऑफ आउटपुट, मार्केट वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस मार्केट वैल्यू ऑफ नन फैक्टर इनपुट, नन फैक्टर इनपुट। नन फैक्टर इनपुट क्या होता है? रॉ मटेरियल, the raw material which is used in the process of production, the cost of raw material which are used in the process of production, these are called the non factor input। okay, तो जो आउटपुट की जो मार्केट वैल्यू है उसमें से यदि हम लोग नॉन फैक्टर इनपुट की जो मार्केट वैल्यू है उसको माइनस कर देते हैं, तब आता है वैल्यू एडिशन ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज, वैल्यू एडिशन ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज, फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज। So this is the definition of value addition of final goods and services। जब भी कोई पूछे what is final value addition of final goods and services, तो क्या होगा? मार्केट वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस मार्केट वैल्यू ऑफ नॉन फैक्टर इनपुट। ओके, अब आते हैं दूसरा जो है वैल्यू ऑफ आउटपुट, वैल्यू ऑफ आउटपुट। वैल्यू ऑफ आउटपुट का मतलब यह होता है केवल मार्केट वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज, मतलब कि जिस मूल्य पे, जिस कीमत पे किसी वस्तु को मार्केट में सेल किया जा रहा है, ठीक ना, मार्केट वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज। ओके, तो वैल्यू ऑफ आउटपुट और वैल्यू एडिशन ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज, वैल्यू ऑफ आउटपुट और फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज दोनों के बीच में बस एक ही डिफरेंसेस है, मार्केट वैल्यू ऑफ नॉन फैक्टर इनपुट। जब हम लोग मार्केट नॉन फैक्टर इनपुट के मार्केट वैल्यू को फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज के मार्केट वैल्यू में सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो हमारा आएगा वैल्यू एडिशन। और बेटा प्रोडक्ट मेथड में हम लोग वैल्यू एडिशन को ही लेते हैं जीडीपी एमपी को कैलकुलेट करने के लिए। इसके लिए मैं आपको एक इलस्ट्रेशन बता रहा हूं, आप इलस्ट्रेशन की मदद से आप समझ जाएंगे कि क्या होता है वैल्यू एडिशन। बच्चों आई विल टेक 3 और 4 इंटरप्राइजेस, जैसे कि पहला है फार्मर, ठीक है, दूसरा है फ्लोर मिलर, जो आटा चक्की की जो मिलें होती है ना, वो फ्लोर मिल, उसके बाद बेकर और शॉपकीपर, ठीक है। इकोनॉमी में मैंने ये 4 इंटरप्राइजेस का लिया है। सपोज फार्मर प्रोड्यूसेस व्हीट, गेहूं प्रोड्यूस कर रहा है, गेहूं को प्रोड्यूस कर रहा है, तो उसकी कीमत वो किस रेट पे सेल कर रहा है, तो सेलिंग प्राइस को वैल्यू ऑफ आउटपुट कहेंगे, वैल्यू ऑफ आउटपुट। तो फार्मर जो व्हीट को सोल्ड कर रहा है वो कितने में कर रहा है? 600 में, रुपीज 600 में। तो उस व्हीट के कल्टीवेशन तक, सोइंग से लेकर के कल्टीवेशन तक
उसने जो भी रॉ मटेरियल यूज करा, जैसे सीड्स है, एक्सपेंडिचर ऑन इरिगेशन है, या फिर लेबर कॉस्ट है, जो भी उसने टेक्नोलॉजी अपने फार्म में, अपने फील्ड में यूज किया, उन सब की वैल्यू आ गई 200 रुपीज। कितनी आ गई? 200 रुपीज। यू कैन से दिस इज व्हाट कॉस्ट ऑफ इंटरमीडिएट कंजप्शन, कॉस्ट ऑफ इंटरमीडिएट कंजप्शन। यानी कि 200 रुपए खर्च कर रहा है वो, ठीक है, 200 रुपए वो एज ए नॉन फैक्टर इनपुट यूज कर रहा है, और उसमें 600 में उसको बेच रहा है। तो वैल्यू एडिशन कितना होगा? वैल्यू एडिशन हो गया 400। यानी कि 200 रुपए खर्च किया, 400 रुपये उसमें वैल्यू ऐड किया, और 600 रुपया में बेच दिया। किसको बेचा? फ्लोर मिल वाले। फ्लोर मिल वाला उसको कितने में खरीद रहा है बच्चे? 600 में। कितने में खरीद रहा है? 600 में। तो फ्लोर मिल का जो है, फ्लोर मिल के लिए जो वीट है वो क्या हो जाएगा? रॉ मटेरियल हो जाएगा। तो वीट को कितने में खरीदे थे उन्होंने? 600 रुपीज में फार्मर से खरीदे थे। तो व्हाट विल बी द कॉस्ट ऑफ इंटरमीडिएट कंजप्शन फॉर फ्लोर मिल? रुपीज 600। ठीक है, और उसमें वो 200 रुपया वैल्यू एडिशन कर रहा है, और बेच कितने लग रहा है? 100। यानी कि उस गेहूं का आटा बन गया, ठीक है, उस गेहूं का आटा बन गया, और उस आटे को वो बेच रहा है कितने में? 100 रुपीज। किसको बेच रहा है? बेकर को, जो केक वगैरह बनाते हैं, ठीक है ना। तो बेकर के लिए कॉस्ट ऑफ इंटरमीडिएट कंजप्शन कितना हो जाएगा? 800। ठीक है, ये जो है बेकर उससे बेकिंग करके 200 रुपया और एडिशन करता है। Now here you can see the estimation of value addition in the economy. First one is the farmer as an enterprises. Farmer produces wheat, okay, and the cost of intermediate consumption for the farmer is 200. ठीक ना? In that expenditure, now student you can see farmer sold his output for rupees 600, in which the farmer uses rupees 200 for expenditure like expenditure on fertilizer, expenditure on seeds, like that. Okay, so rupees 200 will be the cost of intermediate consumption for the farmer. He added rupees 400 in his final product and sell this product for rupees 600. So it will be the final product of farmer. Now wheat is taken by flour mill as a raw material from the farmer. So rupees 600 will be the cost of intermediate consumption for the flour mill. He adds rupees 200 into that and sold that flour to baker. So rupees 800 will be the cost of intermediate consumption for the baker. Now what baker do? Just baker added rupees 200 into them and made cake. उसने क्या बनाया? केक बनाया। उस आटे से वो केक बना रहा है, और उस केक को किसको बेच रहा है? शॉपकीपर को। तो ये 1000 रुपया शॉपकीपर के लिए क्या हो गया? इंटरमीडिएट कॉस्ट ऑफ इंटरमीडिएट कंजप्शन। फिर वैल्यू एडिशन उसने कर रहा है 200 रुपए का, और 1200 रुपया में ये जो केक है वो फाइनली कंज्यूम हो जा रहा है कंज्यूमर के द्वारा। ठीक है, तो फाइनल गुड्स की कीमत कितनी हो गई? 1200 रुपीज। तो अगर when you decided to calculate the domestic income, first of all you take the sum of these. So what will be the sum of this? Rupees 3600. Rupees 3600. And this one rupees 2600. Rupees 2600. And value addition is rupees 1000.
1000. So by considering in this fact, the definition of GDP MP in product method is, if you wish to write, then you can write the definition: gross value added by all enterprises, gross value added by all producing enterprises within the domestic territory of a country for the period of 1 year, is known as GDP MP. मतलब कि इन सारे इंटरप्राइजेस ने डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर विद इन द पीरियड ऑफ 1 ईयर कितना वैल्यू एडेड कर रहे हैं, ग्रॉस वैल्यू एडिशन कितना हो रहा है, ₹100. तो दिस अमाउंट विल बी नोन एज GVA at market price, gross value addition by all enterprises in domestic territory within the period of 1 year. So what will be the amount of this economy within the 1 year accounting period is ₹1,000. So this amount is known as GVA MP, or you can say GDP MP. अब यहाँ पे क्वेश्चन आएगा, जैसे आप ही क्वेश्चन कर सकते हैं कि सर जो वैल्यू ऑफ आउटपुट है हमारी इकोनॉमी में इतने का आउटपुट बन रहा है, तो जीडीपी एमपी में ये अमाउंट क्यों नहीं है, जीडीपी एमपी में आप ये अमाउंट को क्यों ले रहे हैं? बच्चों देखो यहाँ पे इस फार्मर ने 200 रुपये का क्या खरीदा, पेस्टिसाइड खरीदा, तो ये भी तो किसी शॉपकीपर से खरीदा होगा, ये जो पेस्टिसाइड है ये भी तो किसी शॉपकीपर से खरीदा होगा, ठीक है।